Good afternoon. I'm Srishti Shukla. So today I'm here to present a topic. It's CPR, means cardiopulmonary resuscitation. So let's start from the introduction. Cardiopulmonary resuscitation means CPR is a life-saving technique useful in many emergencies. Okay, so it's emergency include heart attack or near drowning in which someone's breathing or heartbeat has stopped. Means what? A patient is in सीवियर ट्रॉमा लाइक सीवियर ट्रॉमा जैसे कि पेशेंट बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में है, पेशेंट को हार्ट अटैक है, पेशेंट डूबा हुआ पेशेंट है, इधर आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाला पेशेंट है जिसकी सडन वी हैड चेक द पल्स, देयर इज नो पल्स, पेशेंट को देयर इज नो ब्रीदिंग इन द पेशेंट इवन दो इन अनकॉन्शियसनेस, मतलब पेशेंट टोटली अनकॉन्शियस है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है. सो वी हैव टू प्रोवाइड CPR टू द पेशेंट. Next, let's study about the definition. Cardiopulmonary resuscitation is a technique of basic life support for oxygenating the brain and heart. Until appropriate definition, medical treatment can restore normal heart and ventilatory action. So what cardiopulmonary resuscitation is a kind of technique जहाँ पे हम heart and brain की normal previous functioning को हम revive करते हैं. मीन ओके लेट्स गेस कि हम करते क्या है लाइक हमारी CPR में. तो हम कंप्रेस करते हैं चेस्ट को, चेस्ट ऑफ द पेशेंट जो कि अनकॉन्शियस है, टोटली अनरिस्पॉन्सिव है. तो इसमें हम क्या करते हैं, रीस्टोर फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, उसे हम रीस्टोर करते हैं ताकि जो प्रॉपर जो टिश्यू ट्रांसफ्यूजन था वो फिर से स्टार्ट हो सके विद द हेल्प ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन द पेशेंट. ओके, next there's a purpose ki why exactly we are doing the CPR. To maintain an open clear airway, like patient है, patient is in trauma और हम चोकिंग का पेशेंट देखते हैं, पेशेंट ने कुछ सॉलो कर लिया है लाइक एट द टाइम ऑफ पेशेंट सॉलोइंग समथिंग एल्स और उसे सडन कार्डियक अरेस्ट आ गया. इधर पेशेंट का टंग फॉल है, टंग बैक साइड बैकवर्ड है, इधर पेशेंट को कोई एनाटॉमिकल ऑब्स्ट्रक्शन है. वी हैव टू चेक आउट. Okay, we have to clarify that. This is the purpose. Next, to maintain breathing by external ventilation. We have to maintain the breathing in the patient with the help of external ventilation. How? We have to either provide oxygenation in case if we are in hospital setting. But what if we are in not hospital setting, we are in mall, we are in normally या हम अपने घरों में हैं, we are in सड़क, हम सड़क पे हैं. So what we will going to do at that time, हम कैसे पेशेंट को ब्रीदिंग देंगे एक्सटर्नल वेंटिलेशन के थ्रू. वी हैव टू प्रोवाइड माउथ टू माउथ ब्रीदिंग टू द पेशेंट. नेक्स्ट, to maintain blood circulating by external cardiac massage. External cardiac massage stands for CPR, means pulmonary resuscitation, cardiopulmonary resuscitation, where we have to provide compression on the chest of the patient और जहाँ पे हम हार्ट को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे to save life of the patient. Definitely this is all we are doing just to save the life of the patient. To provide basic life support till medical and advanced life support arrive. हमें पेशेंट को बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करानी होती है. लाइक व्हाट द इफ वी विल से बेसिक लाइफ सपोर्ट मीन्स हमें जो हमारा जो हार्ट है, पेशेंट का जो हार्ट है, हमें उसे जस्ट रिवाइव करना है. लाइक ओके, देयर इज अ क्राइटेरिया कि एक पर्सन जो है बहुत ही अगर मैक्स कर सकता है, इट्स टू डिफ़िकल्ट, बट 30 to 45 मिनट जो हमारा जो सबसे लॉन्गेस्ट क्राइटेरिया है BLS में, एक पर्सन 35 to 45 मिनट ही CPR कर सकता है. बट दिस इज द very tough case scenario we could see in this. So what we exactly do कि जब तक हम बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, मीन्स हमें नॉर्मल चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड करना है और माउथ टू माउथ ब्रीथ देना है. इफ़ वी आर अनेबल टू provide mouth to mouth breathe to the patient, we have to only provide CPR. At least CPR is must to provide the patient. Next we have advanced life support, means advanced life support arrive means hospital setting. If there is a ambulance arrive, until unless तब तक हमें basic life support provide करनी है to the patient, means we have to provide a CPR to the patient. Next indications हम कब करेंगे. It's cardiac arrest, patient जब cardiac arrest में है. Respiratory arrest, patient is not able to breathe proper. Drowning patient, डूबा हुआ patient. Foreign body in throat, like patient बैठ के खा रहा है, patient has something in their mouth और से sudden choking हो गया, patient is not able to breathe proper. Smoke inhalation, like अगर somewhere we will see
फायर इमरजेंसी है समवेयर, पेशेंट इज इन, हम तब भी देख सकते हैं कि पेशेंट चोकिंग में जा सकता है और उसे सडन रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है ड्यू टू इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द पेशेंट. और फिर नेक्स्ट है ड्रग ओवरडोजिंग. पेशेंट ने नैलोक्सोन इधर फ्यू काइंड ऑफ ड्रग उसने ओवरडोज कर लिया है, दैट्स वाई पेशेंट इज गोइंग इन लाइक एमरजेंसी कंडीशन. सफोकेट कर रहा है पेशेंट, एक्सीडेंटल इंजरी, इधर पेशेंट इज इन कोमा. तो ओके, देयर इज अ वर्ड कोमा. सो अगर पेशेंट कोमा में है तो वी कंटिन्यू मॉनिटर द पेशेंट ऑन द मॉनिटर कि पेशेंट के वाइटल्स क्या है, बीपी क्या है, उसका पल्स क्या है. हम कंटिन्यू पेशेंट को मॉनिटर करते रहते हैं. तो एट द टाइम व्हेन वी सी द रीडिंग, अगर उसमें कुछ फॉल डाउन कर रहा है तो फर्स्टली वी असेस, इजंट इट कि लाइक वी हैड सीन द रीडिंग इज फॉलिंग सो वी स्टार्ट कंप्रेशन. नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट. ओके. Okay, next we have principle of CPR. Means why exactly, what is the purpose? It's more than even the purpose. To restore effective circulation and ventilation, we have to restore this effective circulation and ventilation in the patient. Means we have to properly provide the circulation. Like हमारा जो हार्ट बीट करता है, एक हार्ट बीट में जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है ये फ्रॉम अपर बॉडी पोर्शन, हमारी जितनी एक्सट्रीमिटीज सबको कवर करता है. तो एट द टाइम ऑफ CPR हम क्या करते हैं इज कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो प्रॉपरली हमारे ब्रेन तक जाए. जो हमारा मेन वाइटल ऑर्गन है इज अ ब्रेन. क्योंकि अगर विद इन 5 मिनट देयर इज अ ब्लॉकेज इन ब्लड सर्कुलेशन इन द ब्रेन, तो वी विल सी कि देयर इज अ स्टार्ट इंजरी इन द ब्रेन. और अगर पेशेंट वी विल सी कि आफ्टर रिवाइव भी हो रहा है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है. पेशेंट पैरालाइज हो सकता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है लाइफ टाइम के लिए. सो व्हाट वी हैव टू प्रोवाइड इफेक्टिव सर्कुलेशन टू द पेशेंट. मीन प्रॉपर पेशेंट का सर्कुलेशन होना चाहिए. एंड वेंटिलेशन ऑल्सो, वी मस्ट इंक्लूड द वेंटिलेशन लाइक माउथ टू माउथ ब्रीथ. दिस इज व्हाट BLS. नेक्स्ट, टू प्रोवाइड irreversible central damage due to anorexia. Next, when the heart failed to maintain the cerebral circulation for approximately 4 minutes, the brain may suffer irreversible damage. Means what it's saying कि अगर हमारी ब्रेन को nearby till 4 मिनट तक प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं गया तो irreversible डैमेज हो सकता है, जो कि हम कभी भी ठीक नहीं कर सकते अपने पेशेंट के अंदर. This is the problem. That's why we have to timely start the CPR in the patient. And टाइमली स्टार्ट करने के लिए फर्स्टली हमें जानना होगा व्हाट इज द साइन व्हेन वी कैन स्टार्ट द CPR इन द पेशेंट. Okay, next we have a standard method of CPR. Like there's a variety. We have methods of CPR, like how we can provide CPR in the patient. So this was the standard method of CPR has been ABC. Means A for airway, B for breathing, C for compression. Firstly, we have to go to check the airway of the patient. We have to check the breathing. Is there breathing present in the patient? Either not. C for compression. We have to start the compression in the patient. But recently the America Heart, okay, so जो ABC है ये हमारा पुराना मीन्स प्रीवियस हमारी पुरानी पॉलिसी थी. अगर हम CPR का पेशेंट है तो हम ABC के थ्रू हम असेस करते थे और फिर अपने पेशेंट को लाइफ सेविंग को स्टार्ट करते थे. बट नाउ व्हाट AHA means American Health Association, they have stated कि rather than ABC we should follow CAB means compression, airway and breathing. Means सबसे must है we have to provide the blood circulation till the brain in the patient. उसके बाद we have to go check out the airway of the patient, then provide the breathing. Definitely अगर हम CBA अगर हम करें तो what we will gonna see कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं ब्रीदिंग पेशेंट को, हम माउथ टू माउथ ब्रीथ दे रहे हैं, बट देयर इज नो पास आउट. क्योंकि जो एयरवे है ऑब्स्ट्रक्शन, देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट. पेशेंट की टंग फॉल है, देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन. और हम वी आर कॉन्स्टेंटली जस्ट ट्राइंग, वी आर हार्ड डूइंग आवर हार्ड कि पेशेंट को अब ब्रीदिंग चाहिए, अब ब्रीदिंग चाहिए, बट देयर इज नो चेस्ट अपराइज. We can't see the chest surprise ना. That's why we have to firstly go to the compression कि पहले blood जाए, there's जो भी remain ऑक्सीजन था, वो न्यूट्रिशन था, वो ब्रेन तक हमारा जाए, ब्रेन तब तक एनर्जी ले. एंड आफ्टर 30 there's a ratio 30:2. ठीक है, मीन्स 30 कंप्रेशन के बाद वी हैव टू प्रोवाइड 2 माउथ टू माउथ ब्रीथ ऑक्सीजनेशन, 2 माउथ टू माउथ ब्रीथ टू द पेशेंट. सो व्हाट विल डू
पहले हम 30 to 30 कंप्रेशन करते हैं. We correct the airway of the patient. There's a two method. We will mention later. और फिर है breathing. Means पहले कंप्रेशन देंगे, फिर हम उसके बाद से airway हम patient का straight करेंगे, ठीक करेंगे. Then we have to provide breathing to the patient. Our next is steps in the CPR. This is the most important part. If you are going to study the CPR, we must know these things. So let's start it. Before starting CPR, we must check few things. There's a mention is the person conscious or unconscious? Patient हमारा conscious है या फिर unconscious है? Patient like conscious unconscious कैसे पता चलेगा? We have to tap the patient shoulder of the patient. We have to tap like sir, ma'am, are you okay? Sir, hello. So this is the way how we can check the response of the patient. Next, if the person appears unconscious, like even though after tapping, patient response नहीं कर रहा है, like there's a are you okay? मतलब we are asking the patient, sir, are you okay? Sir, आप ठीक है क्या? If the person doesn't respond, call the local emergency number and begin CPR. हमें instantly अपनी local जो भी हमारा emergency number है 108 like we have to call instantly और हमें CPR करना start करना without any delay. Because earlier what we have studied कि अगर within 4 minutes we haven't start the CPR compression हमने start नहीं किया तो it could be कि chances of damage the brain in the brain of the patient we can see there. Okay, next we have is circulation. Firstly what was there कि हमें response check करना है patient का conscious है इधर unconscious है. Then circulation we have to check the circulation. इसके लिए हमें क्या करना है कि restore blood circulation with chest compression. Okay, so this is what कि हमें restore करना है as earlier the physiology of जो भी heart था we have to repeat it. हमें chest compression के through उन चीज़ों को revive करना है, उन चीज़ों को restart करना है. Put the person on his or her back on a firm surface. Okay, हमें patient को एक firm surface पे लिटाना like RT का पेशेंट है. वी डोंट हैव टू स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशन. हम चाहते हैं कि असेस किया, वी हैड असेस द पल्स, वी हैड असेस द ब्रीदिंग, चेस्ट द प्रेस डाउन इज देयर ऑल नॉट, और हमने रोड पर करना स्टार्ट कर दिया CPR. नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट. पहले हम पेशेंट को सेफ प्लेस पे ले जाते हैं, उसके बाद से हम CPR करना स्टार्ट करते हैं. ओके, पेशेंट ड्रॉनिंग में डूब रहा है, वी डोंट हैव टू स्टार्ट द CPR इन द वाटर. ओके, वी हैव टू हमें पहले पेशेंट को एक सेफ प्लेस पे ले जाना है, किनारे लेकर के आना है, पेशेंट को लाई डाउन कराना है एक फर्म सरफेस पे जहाँ उसकी बॉडी लाइक ऊट पटांग ऊंची नीची जगह पे ऐसे नहीं हो ताकि इट कुड फर्दर कॉज डैमेज इन द पेशेंट. नेक्स्ट, प्लेस द हील ऑफ वन हैंड ओवर द सेंटर ऑफ द पर्सन चेस्ट, प्लेस योर अदर हैंड ऑन टॉप ऑफ द फर्स्ट हैंड. ओके, सो व्हाट इज से कि अगर हम सर्कुलेशन को रिस्टोर कर रहे हैं तो उसमें पहले हमें पेशेंट को फॉर्म सरफेस पे लिटाना होगा और उसके बाद से हम क्या करेंगे, वी हैव टू रीलोकेट द प्लेस वेयर वी हैव टू प्लेस आवर हैंड. तो पहले हम अपने हैंड के हील रीजन को वी हैव टू प्लेस ऑन द चेस्ट लाइक इन हाफ लोअर द स्टर्नम पार्ट ऑफ द पेशेंट. वी हैव टू प्लेस आवर हील ऑफ द हैंड और उसके बाद से हम वी हैव टू प्लेस द सेकेंड हैंड ऑन द चेस्ट ऑफ द पेशेंट. देन यूज योर अपर बॉडी वेट एंड कंप्रेस द चेस्ट least 2 inches. Okay, it's saying 2 inches means nearby 5 centimeter deeper. We have to compress the chest of the patient. Okay, next, push hard and fast at a rate of about 100 compression a minute. Okay, so there's one more thing कि जो हमारा chest है, chest compression rate है, it must be 100 to 120 होना चाहिए. there's a quite little mistake. हमें पेशेंट का जो हार्ट है वो 100 to 120 करना चाहिए कंप्रेशन, क्योंकि इट विल गोइंग टू डेफिनेटली गोना रिस्टोर द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन ऑफ द अदर बॉडी पार्ट जहाँ तक हमारा ब्लड कंप्रेशन जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन पहुँच रहा है. ओके, तो थर्ड थिंग व्हाट वी हैव इज एयरवे. तो फर्स्टली वी हैव टू क्लियर द एयरवे, वी हैव टू चेक, देन वी हैव टू open the person airway using the head tilt chin lift maneuver. Okay, so there's a maneuver like patient is lying down on हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो lying down on a surface है, ठीक है, और पेशेंट को हमने
कंप्रेशन दे दिया, प्रोवाइड करा दिया. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें एयरवे पेशेंट का देखना है. एज अर्लियर वी हैव स्टडीड CAB मीन कंप्रेशन, एयरवे, देन द ब्रीदिंग. मीन्स पहले हमें कंप्रेशन देना है, फिर पेशेंट का एयरवे ठीक करना है, देन वी हैव टू गो ऑन द ब्रीदिंग ऑफ द पेशेंट. अभी हमने कंप्रेशन दिया, अब हम एयरवे चेक करेंगे. तो एयरवे में व्हाट वी हैव टू डू कि हेड टिल्ट, देयर इज 2 मैनर्स बेसिकली, हेड टिल्ट, चैन लिफ्ट. ओके, सो व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हेड टिल्ट, वी हैव टू पुट हैंड ओवर द हेड ऑफ द पेशेंट, हमें इसे टिल्ट करना है. और चिन लिफ्ट, चिन विल बी गोइंग टू अपलिफ्टेड. इससे क्या होगा, हमारा एयरवे जो ट्राई किया है, दिस पर्सन विल गोइंग टू स्ट्रेट, ये स्ट्रेट हो जाएगा और ओपन हो जाएगा. ठीक है. चेक फॉर द नॉर्मल ब्रीदिंग, हमें नॉर्मल ब्रीदिंग पेशेंट का चेक करना है, इज देयर प्रेजेंट एब्सेंट इज समथिंग और नॉट. लुक फॉर द चेस्ट राइज, हमें देखना है कि पेशेंट का चेस्ट राइज डाउन हो रहा है कि नहीं. लिसन फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड, वी हैव टू ट्राई टू लिसन. ओके, देयर इज अ मेथड कि लुक, लिसन एंड फील. बिफोर स्टार्टिंग द CPR इन द पेशेंट वी हैव टू डू वन थिंग, दिस इज लुक, लिसन एंड फील. Look for the chest compression, listen the breathing sound, and feel the pulse of the patient. This is carotid pulse, we have to feel in the patient. Okay, if the person isn't breathing normally, begin mouth to mouth breathing. Okay, तो अभी हमने देखा, we had checked the pulse of the like airway of the patient, हमने चेक करा, और patient का airway is clear but there is no respiration, there is no chest up rise down in the patient we have seen. तो हमें पेशेंट को माउथ टू माउथ ब्रीथ देना स्टार्ट करना है. ओके, एंड वन मोर थिंग, एट द टाइम ऑफ ब्रीथिंग वी मस्ट असेस कि पेशेंट का चेस्ट राइज हो रहा है कि नहीं. अगर देयर इज नो चेस्ट राइज, इट मीन्स कि हम क्वालिटी माउथ टू माउथ ब्रीथ नहीं दे रहे हैं पेशेंट को. ओके, नेक्स्ट इज ब्रीथिंग, ब्रीथ फॉर द पेशेंट. Rescue breathing can be mouth to mouth breathing or mouth to nose breathing. Okay, so there's 2 type, like mouth to mouth हम patient को दे सकते हैं, mouth to nose. Okay, at the time of जब हम patient को mouth to mouth breathe देते हैं, it must कि हमें nose pinch करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और head tilt chin lift method में ही we have to pinch the nose of the patient, जिसकी वजह से like हम patient को like हम एक्सेल कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं एयर टू द पेशेंट, तो समवेयर वो लीक ना हो जाए एयर फ्रॉम द नोज ऑफ द पेशेंट. दैट्स व्हाई वी हैव, दिस इज मस्ट दैट वी मस्ट पिंच द नोज ऑफ द पेशेंट. देयर इज अ बहुत सारी इसमें छोटी छोटी वी विल सी की लाइक पॉइंट है, वी मस्ट नो देम, दे ऑल नो. Okay, next we have using head tilt chin lift maneuver. There's one more maneuver. Earlier what we have studied head tilt chin lift maneuver, and this is what using head tilt chin lift. Oh, sorry, this is the same. Head tilt chin lift maneuver given 2 rescue breath. Okay, ठीक है, हम head tilt chin lift करेंगे और हम patient को 2 rescue breath देंगे. ठीक है. Next is 30 chest compression followed by 2 rescue breath is considered 1 cycle, or 1 cycle 30:2. ठीक है, तो हमें क्या करना है, 30:2 compression मतलब 30 हमें compression देना है पेशेंट में, and 2 rescue breath will be there. Okay, next continue CPR until 5 cycle are completed. Okay, तो हमें continue करना अपने CPR को until 5 cycle, means 30:2, 30:2, 30:2 and 30:2, then again 30:2. It will be our 5 cycle. Okay, ये हमारा 5 cycle होगा until unless हमारा ambulance arrive ना हो जाए. We have to continue the CPR in the patient. Okay, if the person has not begun moving after 5 cycle, even though कि हमने 5 cycle अपने patient को chest compression दिए, हमने breathing दिया, but patient is still unconscious, patient is still unresponsive, so what we have to do, administer 1 shock by using automated external defibrillator. This is the most important thing. अगर आप बहुत ही नॉर्मल प्लेसेस अपने घरों में हो, आप नॉर्मल रोड पे हो, यू विल नॉट गोना गेट द AED हो. ठीक है, आपको AED नहीं मिलने वाला, बट लाइक आपको वी विल गोना सी इन मॉल में हमें AED डेफिनेटली मिल जाएगा. ठीक है, या फिर ऐसे कुछ कॉर्पोरेट एरियाज आप हॉस्पिटल में तो हमें AED मिल जाएगा. ठीक है, so continue CPR until there are sign of movement or emergency medical personnel take over. Okay, so एक बहुत ही controversial question है कि हम CPR पेशेंट में कब तक करें.
वी आर सीइंग कि हमने 10 मिनट किया, 15 मिनट किया, 20 मिनट किया, बस देयर इज नो रिस्पॉन्स इन द पेशेंट, तो हम पेशेंट को CPR कब तक देंगे? वी हैव टू प्रोवाइड CPR टू द पेशेंट अनटिल अनलेस हेल्प अराइव ना हो जाए, हॉस्पिटल हेल्प अराइव ना हो जाए, इधर पेशेंट रिस्पॉन्स ना करें। ओके, सो अगर हम देखें कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि अपोलो, मेदांता, ऐसे जो हाई फाई हमारे जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं जो कि JCI से एक्रेडिटेड हैं, तो इफ़ यू विल सी कि उनकी क्राइटेरिया के हिसाब से हम पेशेंट को 35 से लेके 45 मिनट तक CPR दे सकते हैं, जब तक कि पेशेंट में रिस्पॉन्स वापस ना आ जाए, क्योंकि देयर इज अ चांसेस, देयर इज अ होप कि हम ब्रेन को जिंदा रख रहे हैं। इट कुड बी कि अदर बॉडी पार्ट विल बी गोना डेफिनेटली फाइन अगर पेशेंट रिवाइव हो गया तो। ओके, नेक्स्ट, नर्सिंग मैनेजमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट नर्सेज हैव टू डू, हाउ वी विल गोना मैनेज द CPR इन द पेशेंट अगर पेशेंट हॉस्पिटल सेक्टर में है तो। सो maintain airway patency with use of airway adjacent as required suction, high flow oxygenation. Okay, so हमें नर्सेज को क्या करना है? वी हैव टू कंटिन्यूस सक्शन इन द पेशेंट, हमें सक्शन करना है। ओके, अगर आप लोग इमरजेंसी वार्ड्स में जाओगे, इधर गए होगे, तो आपने देखा होगा कि एट द टाइम अगर पेशेंट को CPR करते आपने देखा होगा, तो आपने ये भी देखा होगा कि सक्शनिंग प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज जो पेशेंट है ना वो हाइपोक्सिया से उसकी डेथ हो जाती है। दिस इज़ द मोस्ट बिगेस्ट रीज़न, मोस्ट कॉमन रीज़न कि अगर हम हॉस्पिटल सेक्टर में इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा पेशेंट डेफिनेटली गोना डाई, और हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान अगर ना दें तो दिस इज़ द मोस्ट बिगेस्ट फॉल्ट ऑफ द नर्सेज। ओके ओके, दिस वन मोर थिंग, और बैक वाल मास्क वेंटिलेशन। ओके, सो दिस इज द वेंटिलेशन, ये बेसिकली वेंटिलेशन के बारे में बात हो रही है कि नर्सेज का रिस्पॉन्स क्या है। वी हैव टू प्रोवाइड सक्शन टू द पेशेंट, जितनी भी सिक्रीशन है वी हैव टू रिमूव देम एवरी सिंगल, क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं पेशेंट को मास्क के थ्रू, देयर इज ऑप्शन, देयर इज ऑब्वियस कि हम पेशेंट को ऑक्सीजनेशन दे रहे हैं, बट देयर इज अ म्यूकस फिल्ड आउट इन ऑल ओवर दी रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ द पेशेंट, और कोई वहाँ पे वेंटिलेशन, कोई भी वहाँ पे exchange of gases नहीं हो रहा है। Why we are providing that, isn't it? We must know that we must go through suction if we are going to provide oxygenation to our patient. Next we have assist with intubation and securing of ETT, endotracheal tube. ETT stands for endotracheal tube. Okay, means ट्रैकिया के थ्रू हम एक ओपनिंग करते हैं जिसे हम एंडोट्रैकियल ट्यूब, मीन्स ट्रैकिया में वो माउथ के थ्रू हमारा ट्रैकिया, ओके दिस इज ट्रैकियोस्टमी, सॉरी दिस इज ट्रैकियोस्टमी, जहाँ पे हम ट्रैकिया में ओपनिंग करते हैं। और ETT एंडोट्रैकियल ट्यूब मीन्स हम माउथ के थ्रू हम ट्रैकिया में दिस अ ट्यूब का इंसर्शन करते हैं, उसके थ्रू हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को। ओके, assist with incubation and securing of ETT insertion, gastric tube and facilitate gastric decompression past intubation as required. Okay, next we have assist with opening management of airway patency and adequate ventilation. हमें adequate ventilation provide करनी है। ऊपर दिया था कि facilitate gastric decompression past intubation as required. So हमें gastric decompression provide में करता है, patient में करना है, क्यों करना है? Why we have to do this? गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, ताकि पेशेंट को एस्पिरेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर हमारे गैस्ट्रिक में स्टिल हमारा जो गैस्ट्रिक है वो फिल रहेगा कंटेंट से, तो पेशेंट इट माइट कि पेशेंट उसे लाइक पेशेंट को रिगर्जिटेशन हो रहा है और पेशेंट ने उसे इनहेलेशन के थ्रू वो एयरवे में चला गया, फिर पेशेंट को बहुत सारी रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा सकता है, हाइपोक्सिया की वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन। एंड नेक्स्ट वी हैव सपोर्ट लेस एक्सपीरियंस स्टाफ बाय कोचिंग गाइडिंग, एग्जांपल ड्रग प्रिपरेशन। हमें ड्रग प्रिपरेशन जो मोस्ट ज़्यादा एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं होते, वी मस्ट ऑल्सो एक्सप्लेन दैम, वी मस्ट कोच दैम। If a shockable rhythm is present, ensure manual. Okay, next we have is if a shockable rhythm is present, ensure manual defibrillator pad are applied and connected. Okay, ये AD की बात हो रही है कि अगर हम AD जब प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, ठीक है, तो खैर आजकल तो मैनुअल आ रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली जो शॉकेबल रिदम होते हैं उस पर शॉक आता है एट अ पर्टिकुलर जूल 350 जूल वो शॉक
प्रोवाइड कराया जाता है पेशेंट को, प्रोवाइड होता है। इफ CPR इज एन प्रोसेस, अगर हमारा CPR भी कांस्टेंट है, प्रिपेयर एंड इंडिपेंडेंटली डबल ऑफ एड्रेनलिन, double of adrenaline. So this is adrenaline जब okay, there's a two method, ACLS and BLS, मतलब advanced cardiac life support and BLS basic life support. basic life support हम out of hospital setting करते हैं और ACLS हम hospital setting में करते हैं, means with medication we have to give ट्रीटमेंट टू द पेशेंट फॉर द CPR, मतलब जो भी CPR के टाइम पे हम कर रहे हैं वो ACLS में अगर हम CPR कर रहे हैं लाइक, तो हम मेडिकेशन भी प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को। तो दिस इज़ द वन ड्रग एड्रेनलिन, और हमें पेशेंट को IV देना होता है। IV क्यों? बिकॉज दिस इज़ द वे, क्योंकि हम IV बहुत ही ज़्यादा उसका MOA जो है, मोड ऑफ एक्शन IV बहुत ही फास्ट होता है, दैट्स वाई हम जल्दी रिजल्ट्स आ सकते हैं। डॉक्यूमेंट करेंगे मेडिकेशन, ये सब हमारा क्या था, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग मैनेजमेंट था हमारा। ओके, this is the summarization that the cardiopulmonary resuscitation is an emergency procedure used when the heart and breathing stop। पेशेंट में जब हार्ट बीट और ब्रीथ स्टॉप हो जाती है, हमें प्रोवाइड कराना होता है। हमें पेशेंट का जो ब्लड सर्कुलेशन है वी मस्ट की हमें उसे रीस्टोर करना है और हमें प्रॉपर ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड कराना है पेशेंट को। एंड रेशियो हमारा होना चाहिए, मस्ट हम जाने कि 30:2 हमारा रेशियो होना चाहिए। और जो हमारा कंप्रेशन रेट होना चाहिए 100 to 120 पर मिनट होना चाहिए। डेप्थ मस्ट बी 5 to 6 centimeters, मीन्स 2 inches एट वी हैड अर्लियर स्टडी। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको सब अच्छा लगा होगा। थैंक यू।